All right, G, welcome back to the second part of the third session. And we were correcting the assignments that were submitted after the first week of internship. We are around the middle of all the assignments. I'm going to get back to the document, share my screen with you, make sure that you follow each and every step. And at the end of the session, I think there will be time for question answers. So don't worry about that, inshallah. Or you can, keep typing your questions in the chat box and I will get back to them when we finish correcting the assignments. So I'm going to go to the Word document. All right. The question that we had was here, I corrected this one, right? What can be done to reduce drastic climate global warming? How spending most of the time in the AC is affecting the health of general population in Pakistan. So by now, I'm sure that you know how non-specific this question is. The question, it was probably either not subjected to finer analysis or it was subjected, but the interpretation of finer was not applied to the research question. So spending most of the time in what is most? Is this 20 hours out of 24? Is this 10 hours out of 24? Is this 12 hours out of there's no most. We don't know what is most in AC. Which AC? Is it a central air conditioning? Is it an air conditioned room and people coming in and out of those rooms? Or is this some specific, is this a split AC? Is this a window AC? We don't know. Affecting the health. What part of health? What health? Are they gaining weight? Are they losing weight? Is it their blood pressure? Is it their sugar? Is it their state of sleep? Is it, how is it affecting? Is it affecting the lungs? Is it affecting the brain? See how, when you look at a research question and you already have knowledge of finer analysis and you know how to make the question specific and you know the epidemiologic inquiry, how to make your question so that the question will give you the objectives as well as the title of the study and as well as the methodology of the study. And general population, general population of what? Entire Pakistan? I mean, these are 25 crore people. So, how can I know the health status of general population of Pakistan through this research that I am doing probably as my first research project? So having subjected the question to finer analysis, how are we going to rephrase this question? इस क्वेश्चन को हम कैसे चेंज करेंगे कि ये एक डुएबल रिसर्च बन जाए, ये एक ऐसा क्वेश्चन बन जाए जिसमें से हम अपने ऑब्जेक्टिव्स भी निकाल सकते हैं और उसमें से हम अपना टाइटल भी निकाल सकते हैं और हम उस रिसर्च को करके एक्चुअली छाप भी सकते हैं। हम कैसे वो सवाल इसमें से निकालेंगे? हाउ स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन एसी। सो बेसिकली व्हाट माय आइडिया इज, अगर मैं होती ये रिसर्च कर रही होती और मेरी टीचर मुझे कहती कि ये तो अफशाम बड़ी नॉन स्पेसिफिक है, हाउ विल यू मेक इट स्पेसिफिक? एक होता है ना, इतना ब्रॉड व्यू होता है, उसको आपने फोकस में लाना होता है, तो एक नैरो फोकस में उसको ला के आपने उस क्वेश्चन का जवाब देना होता है, because of limited resources, limited time, limited knowledge about research. So spending most of the times, नहीं, आप ऐसे लिखोगे, what is the uh, difference in some health parameter? अब मुझे नहीं पता वो क्या होगा, क्या वो बीपी है, क्या वो शुगर है, क्या वो वेट है, क्या वो एक्सरसाइज टॉलरेंस है, वो क्या है? Something, right? What is the difference in this? Oh, मैंने spelling गलत लिख दिया. Between, वो कौन से लोग हैं जिनको आप स्टडी कर रहे हैं? What part of population? So you can write between adults 25 to
40 years एज, और इसमें भी जेंडर भी डिफरेंट होगा, औरत का डिफरेंट होगा, मर्द का डिफरेंट होगा। सो देखो, मेडिकल रिसर्च है ना, वी नो कि जेंडर्स में भी फर्क होते हैं, तो आप ऐसा लिखें एडल्ट मेल्स और एडल्ट फीमेल्स वट एवर। 25 to 40 years ऑफ एज और एडल्ट, आप इसमें हाँ पाकिस्तानी लिखेंगे। पॉपुलेशन ये वाली है ना। स्लीपिंग इन एसी रूम्स वर्सेस नॉन एसी रूम्स। क्लियर हो गया? आपका एसी भी आ गया इसमें, आपका हेल्थ भी आ गया, आपका पाकिस्तानी पॉपुलेशन भी आ गई। लेकिन द होल थिंग इज नाउ वेरी फोकस्ड, इट इज वेरी क्लियर, एंड इट इज एक्सप्लेनिंग व्हाट यू वांट टू डू। ठीक है जी। सो एसी वाला स्टडी मैंने आपको ऐसा बना दिया। व्हाट आर द स्पेसिफिक हेल्थ इश्यूज, अब तो आपने ये देखो। हाँ अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव्स जब मैंने देखे थे उस पे मैंने लिखा हुआ है, आई थिंक आपको फीडबैक में भी लिख के भेजा था कि नन ऑफ दीज आर ऑब्जेक्टिव्स, नन ऑफ दीज आर स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स, दे आर ऑल रिसर्च क्वेश्चंस। ठीक है। सो अब ये जो हमने बना लिया रिसर्च क्वेश्चन, इसमें से अब निकलेगा ठहरो, पहला ऑब्जेक्टिव आपका क्या होगा? व्हाट इज द स्पेसिफिक हेल्थ इशू। अब तो आप डिफरेंस ढूंढ रहे हो, अब तो आप कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हो, ठीक है। सो यू विल राइट टू मेजर दी, और जो भी चीज आप देख रहे हो, जो भी वेट देख रहे हो, हाइट देख रहे हो, हेड सरकमफ्रेंस देख रहे हो, शुगर देख रहे हो, बीपी जो भी देख, मेजर द दिस ऑफ, और फिर वो आप अपना स्टडी पॉपुलेशन लिखेंगे ऑफ मेल्स और फीमेल्स between 25 to 40 years age, sleeping in AC versus non-AC. नो नो क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, ये आपका पहला ऑब्जेक्टिव है। मेजर भी करना है, मेजर, या आप ये भी कर सकते हैं रिकॉर्ड द दिस ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, हाउ मच आवर्स, ये नहीं, ये आप नहीं कर सकते इस रिसर्च से, ठीक है। हाउ मेनी आवर्स, ये आप तब करेंगे जब आप उनसे एक्चुअली उनकी एसी यूजेज के बारे में भी पूछ रहे हैं। सो हाउ मेनी आवर्स, बहुत, दिस इज अ गुड ऑब्जेक्टिव जो आपने लिखा है, अगर जो मुझे समझ आई है कि कितनी देर वो एसी में रहते हैं तो फिर उनको मसला पैदा होता है। ठीक है। उसके लिए आपको अपनी रिसर्च का फिर उस ऑब्जेक्टिव्स चेंज करने होंगे। आप ये लिखोगे, फिर यहाँ पे आएगा मेजर द एवरेज टाइम स्पेंट इन एसी रूम्स between among the group exposed to AC and correlate their जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है। यानी कि ना सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि जो एसी में है और जो नहीं है उसमें हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं, हम ये देख रहे हैं कि जो एसी में ज्यादा टाइम गुजार रहा है क्या उसमें वो प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, और जो एसी में कम टाइम गुजार रहा है शायद उसमें वो प्रॉब्लम कम हो रही है, हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी। सो आपका दूसरा ऑब्जेक्टिव ये हो गया। तीसरा ऑब्जेक्टिव मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ। ये अब जो भी है, आई डोंट नो, जेंडर और एज ग्रुप आपका उसमें आ गया है, आपके रिसर्च क्वेश्चन में आ गया है, सो आई करेक्टेड द होल थिंग फॉर यू। हाउ स्पेंडिंग अफेक्टिंग जनरल पॉपुलेशन ना, आपका रिसर्च क्वेश्चन ये है। अब आपने इसमें से टाइटल बनाना है, ये टाइटल नहीं है, ये गलत है। अब आपने इसमें से खुद टाइटल बनाना है, एंड यू आर एक्चुअली डूइंग ए केस कंट्रोल स्टडी, जिसमें केसेस वो हैं जो एसी को एक्सपोज्ड हैं और कंट्रोल्स वो हैं जो एसी को नहीं एक्सपोज्ड। ठीक है जी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और राइट, अगला, व्हाट इंटरवेंशन प्रिवेंटिंग कार्डियोवास्कुलर डिजीज रिस्क इन वुमेन विद पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। वेरी गुड क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है। फाइनल एनालिसिस में भी ठीक है, सब कुछ के लिहाज से ये क्वेश्चन ठीक है, गुड जॉब।
जिसने भी भेजा है, वेरी गुड, स्मार्ट क्वेश्चन, वेल थॉट आउट क्वेश्चन। लेकिन ये इंसिडेंस एंड प्रेस पे मैंने वहां पे भी मार्क किया होगा, इंसिडेंस प्रेवलेंस जो है ना, मेरी ट्रिगर टर्म्स है, क्योंकि आपको आपके टीचर्स ने नहीं पढ़ाया होता, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। इंसिडेंस प्रेवलेंस बच्चे हम इन स्टडीज से नहीं डिटरमिन कर सकते, ठीक है। डू वी मेक आवर ओन क्वेश्चनेयर यूज, क्वेश्चनेयर पे जाएंगे बच्चे, रिसर्च डाटा गैदरिंग टूल आपका आगे पढ़ाई आ रही है, वो आप करना करें, वो चीज आ रही है आपके लिए। अच्छा, टू इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ डाइटरी इंटरवेंशंस, अब देखो व्हाट इंटरवेंशंस है आपका क्वेश्चन जो है ना, व्हाट इंटरवेंशंस, अब आप कह रहे हो इवेलुएट द इफेक्टिवनेस, दिस डजंट गो विद योर ऑब्जेक्टिव्स, डजंट गो विद योर ओरिजिनल स्टडी क्वेश्चन। आपने एक नैरो अच्छा फोकस शुरू किया और उसको एकदम से आपने डाइवर्सिफाई कर दिया, आपका यू लूजिंग फोकस हेयर। इंसिडेंस प्रेवलेंस तो चलो वो तो हम चेंज कर देंगे, फ्रीक्वेंसी कर देंगे इसको, हाँ, इन वुमेन विद पीसीओस वो ठीक है, लेकिन इवेलुएट द इफेक्टिवनेस नो, इस स्टडी में आप ये नहीं कर सकते हो, डाइटरी इंटरवेंशन ये नहीं कर सकते हो ठीक है। Assess changes in cardiovascular such as ये in women with and insulin women, ये ठीक है, this is a good objective, ये स्मार्ट भी है, आपने इसमें सारी बात क्लियरली लिखी हुई है। असेस ना देखो, असल में तो ऐसा करना है ना, आपने आपने इस स्टडी को सिस्टमैटिक रिव्यू बनाया हुआ है, आपने जो बात की है ना कि मैं सिस्टमैटिक रिव्यू करूंगी, ये दिस डजंट गो विद द होल आइडिया ऑफ योर स्टडी। आपने स्टडी शुरू में सिस्टमैटिक रिव्यू नहीं लिखा है, लेकिन एंड में आपने एकदम से कहा कि हम तो इसका सिस्टमैटिक रिव्यू कर रहे हैं। अगर तो आपने सिस्टमैटिक रिव्यू करना है और अपडेटेड इंटरवेंशंस ढूंढनी है, तो आपके ऑब्जेक्टिव्स फिर नहीं ठीक, फिर आपका तो ऑब्जेक्टिव ही ये बन जाता है ना, देखो ये बन जाता है ये मैं आपको बताती हूँ, एक ही ऑब्जेक्टिव मैं यहाँ लिख रही हूँ आपके लिए, एंड आई थिंक यूर वेरी स्मार्ट, यूल नो कि कैसे बनाना है। टू कंपाइल एंड compare the updated interventions for reducing the updated the published, क्योंकि सिस्टमैटिक रिव्यू है ना, तो आप पब्लिश चीज देख रहे हो, फॉर रिड्यूसिंग इतना इतना वुमन विद दिस, बस ये आपका एक ही ऑब्जेक्टिव है। बाकी अब आपके बाकी ऑब्जेक्टिव स्टडी में काम नहीं करेंगे, आप ऑब्जर्व भी नहीं कर रहे हो, इंसिडेंस प्रेवलेंस कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप जाके लिटरेचर में देख रहे हो कि क्या चीज पब्लिश हुई भी है, हाउ कैन वी हेल्प दीज वुमेन विद पीसीओएस, जो इनका कार्डियोवास्कुलर रिस्क ज्यादा हो जाता है, इनका वेट ज्यादा होता है, इनका ब्लड शुगर इंस्टेबिलिटी होती है इनको, तो वो हम कैसे करेंगे, बस दैट्स इट, ओके। बाकी चीज फिर आपका वो नहीं वो हो रहा है, उसमें नहीं फिट हो रही है वो चीज, आप सिस्टमैटिक रिव्यू अगर कर रहे हो ना, तो फिर उसमें कुछ भी नहीं फिट होता है, बस फिर उसमें एक ही ये ऑब्जेक्टिव आपका फिट होता है, ओके। व्हाट इज द एसोसिएशन ऑफ, आ गए मेडिकल स्टूडेंट है, अच्छा, बट इट्स इट्स अ गुड टॉपिक, एसोसिएशन ऑफ एकेडमिक स्ट्रेस विद स्लीपिंग डिफिकल्टी। देखो बच्चे, ये देख के सबसे पहले मैंने ये सोचा था कि एकेडमिक स्ट्रेस अगर आप इसमें से निकाल दो, स्ट्रेस में भी तो स्लीपिंग डिफिकल्टी होती है ना, तो मेडिकल स्टूडेंट को सिर्फ एकेडमिक स्ट्रेस तो नहीं लाहक होता, मेडिकल स्टूडेंट बेचारा शायद हॉस्टल में रह रहा हो, उसको अम्मी के हाथ का खाना भी ना मिल रहा हो, तो उसका वो बेचारा जो है या बेचारी, कहीं उसने वो फोन पे दोस्तियां भी इधर उधर लगाई हुई हो, उसका भी उसको स्ट्रेस हो, फिर उसके दोस्त भी उसको यंग लोग होते हैं, गैस लाइट कर रहे हो, आप सिर्फ एकेडमिक स्ट्रेस आइसोलेट कैसे करोगे, कि आप किसी को ये कहो कि आपको स्ट्रेस है और वो आपको कहे जी मुझे 100 डिग्रीज का स्ट्रेस है, तो आप उसमें से ये बात कैसे निकालोगे कि उस 100 डिग्री के स्ट्रेस में से 30 डिग्री या 40 डिग्री एकेडमिक स्ट्रेस है, या 50 डिग्री एकेडमिक स्ट्रेस है। इट्स यू नो सी व्हाट आई मीन, लाइक दिस इज वेरी नॉन स्पेसिफिक, दिस इज वेरी नॉन स्पेसिफिक, और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव। जब हम फाइनल कर रहे होते हैं, पहली चीज है फीसिबल, जिसने भी फाइनल बनाया है कमाल किया है उसने, वो आपको वहीं पे रोक देता है कि देखो बच्चे, फीजिबल है कि नहीं है, अच्छी तरह सोचो, जो चीज आप अपने रिसर्च क्वेश्चन में लिख रहे हो वो आप एक्चुअली कर सकते हो कि नहीं,
सो एकेडमिक स्ट्रेस को आइसोलेट करना आप लोगों की एज में, आप जो 18 से 25 साल के नौजवान होते हैं, उनमें ये चीज आइसोलेट करना बहुत मुश्किल है कि जी मुझे सिर्फ एकेडमिक स्ट्रेस है बस, अल्हम्दुलिल्लाह बाकी मेरी जिंदगी में कोई स्ट्रेस नहीं है। इट्स रियली हार्ड टू डू। ठीक है। फिर स्लीपिंग डिफिकल्टी, यू नो व्हाट इज द स्लीपिंग डिफिकल्टी? सम पीपल स्लीप अलॉट and that is also a difficulty. Some people cannot go to sleep, that is a difficulty. Some people cannot get up from sleep, that is a difficulty. So क्या चीज है, आप कौन सी स्लीपिंग डिफिकल्टी ढूंढ रहे हो, और आप किस ईयर के किस लेवल के मेडिकल स्टूडेंट में स्लीपिंग डिफिकल्टी ढूंढ रहे हो? सी व्हाट आई मीन, हाउ टू मेक योर क्वेश्चन feasible and doable. अच्छा, फिर आपने भी प्रेवलेंस का खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल किया है, इसको देख के ऐसे ही मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता है। एकेडमिक स्ट्रेस, हाउ विल यू डू दैट, टू असेस द प्रेवलेंस? एक तो प्रेवलेंस हम कम नहीं कर नहीं सकते, हम तो फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं ना, हमारे पास जो 100 या 200 स्टूडेंट्स हैं हमारी स्टडी में, उनमें क्या फ्रीक्वेंसी है, उनमें कितनों को एकेडमिक स्ट्रेस है। फिर दोबारा से फिर एकेडमिक स्ट्रेस, व्हाट एकेडमिक स्ट्रेस, क्या मसला है उनको? सो आपका जो टॉपिक है ना, इट इज नॉट अ बैड टॉपिक, बट यू नीड टू रियली रिफाइन इट। यू नीड टू, अब इसमें देखो मैं आपको सिर्फ दो, एक ऑब्जेक्टिव लिख के दूंगी और एक आपका टाइटल लिख के दूंगी। व्हाट इज द एसोसिएशन? कॉजल एसोसिएशन रिसर्च के जरिए प्रूव करना इज वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग्स। देखो, आपने खुद यहाँ क्रॉस सेक्शनल लिखा हुआ है। क्रॉस सेक्शनल का मतलब ये है कि मैं आज देख रही हूँ, मैं आपसे आज मिल रही हूँ, और आप मुझे कह रहे हैं डॉक्टर अफशा आप अच्छा सोती हैं, मैं कहती हूँ नहीं यार। फिर कहते हैं अच्छा आपको एकेडमिक स्ट्रेस है, मैं कहती हूँ हाँ है। आज हम मिल रहे हैं। कल अगर आप मुझसे मिलें और शायद मेरा प्रॉफ हो चुका हो, तो आप मुझे कहें हाँ जी डॉक्टर अफशा क्या हाल है स्ट्रेस का, मैं कहूँ कोई स्ट्रेस नहीं है। और फिर आपकी नींद कैसी है आजकल? बिल्कुल ठीक है, 24 में से मैं 20 घंटे सो रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, नींद की मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है। अब मसला बन जाता है, दिस कैन नॉट बी अ क्रॉस सेक्शन। अगर आपने एसोसिएशन प्रूव करनी है कि एकेडमिक स्ट्रेस इज एसोसिएटेड विद स्लीप डिफिकल्टी, यू नीड अ प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट। आपको आगे जाके टाइम में डिटेक्ट करना होगा कि इसको एकेडमिक स्ट्रेस हुआ था, आज हुआ था, कितने दिन तक स्लीप डिफिकल्टी रही इसको, या एकेडमिक स्ट्रेस जब खत्म हो गया तो क्या स्लीप डिफिकल्टी फिर भी रही या ना रही। सी व्हाट आई मीन? ये आपका प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट के बगैर आपका रिसर्च क्वेश्चन नहीं आंसर हो सकता। ठीक है। ओके, सो देन आई टोल्ड यू कि अब मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव लिख के देती हूँ। आपने क्या करना है, आपने ये लिखना है कि टू डिटरमिन द presence or absence of difficulty in going to sleep among medical students of second to third year MBBS। अब आप एकेडमिक स्ट्रेस की बात नहीं कर रहे, बस सेकंड टू थर्ड ईयर का बच्चा है। अगर आप इसको मजीद अच्छा बनाना चाहते हैं तो फिर आप ये लिखेंगे कंपेयर्ड विद फर्स्ट ईयर एमबीबीएस। अब ये बड़ा अच्छा सा एक एलिगेंट सा आपका ऑब्जेक्टिव बन गया है, बल्कि हो सकता है ये कहीं पब्लिश भी हो जाए। आप इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं, और आपने बड़ी इसमें स्पेसिफिक टर्म्स इस्तेमाल किए हैं कि या तो वो उसको सोने में, नींद में जाते हुए उसको डिफिकल्टी होती है कि नहीं, वो कहेगा मुझे यार नींद आती ही नहीं है, मैं सो ही नहीं सकता, जब मैं लेटता हूँ या लेटती हूँ तो मुझे कोई नींद नहीं आती, ये बात है। सेकेंड और थर्ड ईयर के बच्चे हैं इनको स्ट्रेस होगा। फर्स्ट ईयर वाले अभी अभी एंटर हुए हैं, वो अभी एफएससी वाली नींद लेके आए हैं अपनी। ठीक है। सो दिस इज देन गोइंग टू बी ए डिस्क्रिप्टिव, कंपैरेटिव, और ए केस कंट्रोल। और केस कंट्रोल में सीनियर जूनियर वाली बात है, केस आपका केस वो है जो एकेडमिक स्ट्रेस को एक्सपोज हो चुका है, जो सेकंड थर्ड ईयर में है।
ठीक है जी। ये आपकी अब ये आपकी थोड़ी सी जो रिसर्च है ना, ये डुएबल हो गई। अब ऐसा है कि ये आपके लिए आसान हो सकती है। एकेडमिक नहीं देख रहे आप, फिर ये नहीं देख रहे आप, सिर्फ स्लीप पैटर्न देख रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टडी है ना, यू आर डिस्क्राइबिंग समथिंग, आप सिर्फ स्लीप पैटर्न देख रहे हैं। ओके, व्हाई इज देयर एन इंक्रीज इंसिडेंस, फिर से इंसिडेंस आ गया। Alright, okay. I don't think I'm recording this session, so I will not be uploading it, or maybe I'll start recording now. क्योंकि मैं रिकॉर्ड ऑन करना भूल गई थी। Let me just record it जो बाकी हैं, ताकि वो रिकॉर्ड हो जाए। कहाँ गया? Let me. I think I'm recording. Yeah, I think I am. Yeah. Okay. Good. So I am recording. I'm sorry. Why is there an increase in incidence and mortality from CAD in young adults? So are you sure जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है that there is actually an increase? क्या आपने कोई लिटरेचर सर्च की है? क्या आपको ये पता चला है कि वाकई कोरोनरी आर्टरी डिजीज से मोर्टेलिटी बढ़ गई है? अगर ऐसा है तो ठीक है, आपका सवाल क्वालिफाई होता है। बट इंसिडेंस एंड ऑन इंसिडेंस हम नहीं कर सकते, वी डोंट नो इंसिडेंस। हाँ, इफ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इट फ्रॉम लिटरेचर देन या ऑफ कोर्स यू नो द इंसिडेंस। डू वी नो कि मोर्टेलिटी बढ़ गई है? आई डोंट नो, मे बी बढ़ गई हो, आपने स्टडी किया हो। इन यंगर एडल्ट्स, आपने इसमें एज लिखनी है, आपने इसको फिजिबल बनाने के लिए ये बताना है कि ये कौन से यंगर एडल्ट्स हैं, इनकी क्या एज है। Where is an increase in number of this in young adult population? So you are asking about the geographic location, कि वो कहाँ पे कौन सी जगह हैं। अब आप मुझे ये बताएं, जब आप इस क्वेश्चन का फाइनल एनालिसिस करते हैं, तो डू यू थिंक इट इज फीजिबल कि आप इतने, वेयर इज, आप कितने एरियाज का जाके कोरोनरी आर्टरी डिजीज की मोर्टेलिटी देखेंगे? कितनी जगहों पे आप जाएंगे? और आपने यहाँ पे इंसिडेंस यूज किया है, इंसिडेंस की टर्म यूज की है ना। सो इंसिडेंस का मतलब ये है कि आप पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी कर रहे हैं। सो क्या ऐसा हो सकता है कि आप पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी कर लें? इफ यू हैव द रिसोर्सेज, आई मीन इफ यू हैव स्टैटिस्टिक्स का ब्यूरो भी है आपके पास और सारे कंप्यूटराइज फिगर्स हैं, फिर तो ये बड़ा फीजिबल है। लेकिन हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, ये चीज उसमें फीजिबल नहीं है, ये उसमें नहीं है बिल्कुल। ठीक है जी। So what you can do is, I and the question is very good. I'm not criticizing the question as such. Let me just give you a question जो फाइनल पे पूरा उतरता है और उसमें आपके क्वेश्चन के भी सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। वो ये है, what is the difference between mortality from coronary artery disease among men ages 40 to 50 years इन, जहां पे आप रहते हैं आप वहां पे वो कर सकते हैं, फ्रॉम 1990 टू 2020, मे बी 2020 वट एवर, जितने भी अरसे का आपने देखना है। नाउ दिस इज अ रिसर्च क्वेश्चन जिसमें वो सारी बातें हैं जो आप पूछ रहे हैं। सॉरी, इसमें वो डिफरेंस, मोर्टेलिटी ज्यादा हुई है कि कम हुई है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है, एज आपने बता दी, ये लोग हैं वो फला इलाके में रहते हैं, ठीक है। और आपने साल भी बता दिए, 30 साल का डाटा आप देख रहे हैं या 5 साल का देख रहे हैं, वोट एवर, जो आपकी मर्जी है आप उसमें वो टाइम बताएंगे। अब ये फिजिबल भी हो गया, अब ये इंटरेस्टिंग भी हो गया, अब नॉवल भी हो गया, अब ये रेलिवेंट भी हो गया, ये सब कुछ हो गया, ये फाइनल में पास हो गया। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा? असेस फॉर दिस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन करेगा बच्चे? हमारा ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है उसमें सिर्फ सिफारशी लोग भरे हुए, वी डोंट हैव स्टैटिस्टिक्स फॉर पाकिस्तान। हाँ, इफ यू कैन वांट टू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट, एक नया प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो और बात है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे और आपके हॉस्पिटल लेवल पे भी इवन आपके पास ये फिगर्स नहीं मौजूद। ये एक अचीवेबल ऑब्जेक्टिव, इज नॉट अ स्मार्ट ऑब्जेक्टिव, is not specific, it is not achievable, it is not even measurable. hmm? To check the mortality of ये ठीक है, टू, और फिर assess the habits of इतना इतना, ये तो बिल्कुल, ये तो आपके स्कोप से बिल्कुल बाहर है।
हैबिट्स इसमें कहीं पे हैबिट्स नहीं है, समझ आइए। आप जो है ना, आप मरे हुए लोगों का ऑडिट कर रहे हैं। सो उनकी तो हैबिट्स आप कब कहाँ देखेंगे। और अगर देखनी भी है तो ये एक अलग रिसर्च है, इसका फिर आपकी रिसर्च से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक नया प्रोजेक्ट है। ठीक है। सो बेसिकली एक ही ऑब्जेक्टिव आप लिखेंगे, और वो ये है, कंपाइल एंड कंपेयर द mortality from CAD, which is sudden cardiac death, among males ages, क्या एजेस थी, 40 to 50 थे ना, हाँ, 50 years, presenting to ER in, जो भी जहां पे आप काम कर रहे हैं, between, और जिन सालों में आप स्टडी करना चाहते हैं, ये वो ये साल है। ये एक ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बना के दे दिया जो आपकी स्टडी का यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव है। ठीक है जी। ये असल में दिस इज फीजिबल फॉर यू, दिस इज डूएबल फॉर यू, दिस इज इजी फॉर यू, एंड दिस इज इवन पब्लिशेबल। इट्स वेरी वेरी इंप्रेसिव। ठीक है जी। दिस इज योर स्टोरी। अच्छा जी। फिर आया था, हाउ आस्किंग अबाउट सेंसिटिव टॉपिक्स, एग्जाम्पल पर्सनल ट्रॉमा, इलीगल बिहेवियर्स, impacts participants emotional states and their willingness to provide honest responses. This is very good. This is very good. This is a complete question. It is फाइनल एनालिसिस में भी ये ठीक है, आप लोगों से पूछ सकते हैं। यू कैन एक्चुअली आस्क के विलिंगनेस टू प्रोवाइड ऑनेस्ट रिस्पॉन्सेज, सो यू कैन मेक अ क्वेश्चनेयर एंड यू कैन आस्क देम, investigate the emotional responses of this itna itna. This could include ये this is not part of the objective. This is not, इसको ऑब्जेक्टिव में आपने कैसे, ऑब्जेक्टिव एक सेंटेंस होता है। इन्वेस्टिगेट द इमोशनल रिस्पॉन्सेस, ऐसे लिखते हैं, मैं बताती हूँ। Including feelings of satisfaction, annoyance, or indifference during and after taking surveys. During and after asking questions about sensitive topics like personal trauma or illegal behaviors। ये है, ये आपका, सॉरी जी, दिस इज द ऑब्जेक्टिव, that is smart, that is everything, that describes your whole study. Assess how concerns about privacy and data attitude towards taking surveys. This is also a good objective. Very good. आपकी स्टडी में से ये इंफॉर्मेशन निकलेगी। ओके। सो दिस असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ ये बिल्कुल ठीक है। प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट, आई डोंट नो, आई थिंक दिस इज अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी। आई थिंक जो मैंने सोचा है या जो मुझे समझ आ रही है, ये एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी है। आप ट्रॉमा वाले लोगों को सालों तक नहीं फॉलो कर सकते, ट्रॉमा वाले लोगों को पकड़ के उनसे पूछ सकते हैं, हेलो जी, आपको हमारी बात बुरी तो नहीं लगी, वगैरह वगैरह। सो आई थिंक कि ये एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी होगी। कॉजेज ऑफ डायरिया अमंग चिल्ड्रन अंडर 5 years of age in Pakistan, दिस इज, इसकी ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आई। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज नॉट अ रिसर्च क्वेश्चन। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डायरिया कर सकते हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान के बच्चों में डायरिया के कॉजेज ढूंढना, ये जिसका भी टॉपिक है, दे कैन कॉरेस्पॉन्ड विद मी प्राइवेटली इन अ प्राइवेट चैट बॉक्स। अब मुझे याद भी नहीं है कि किसका है, मेरे पास सारे असाइनमेंट्स पड़े हुए हैं। बट दिस नीड्स टू बी रिपेयर्ड, दिस रियली नीड्स टू बी रिपेयर्ड एंड चेंज्ड to reduce the incidence of diarrhea. This is like a government level objective। बच्चे, हम क्या हैं, हम तो समर के इंटर्न्स हैं रिसर्च के। आइडेंटिफाई द मोर्टेलिटी रेट, या दिस इज राइट, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो जरूर कर सकते हैं, वो आइडेंटिफाइड है ऑलरेडी, वो स्टेटिस्टिक्स मौजूद हैं। कंडक्ट सर्वे ऑफ, फिर प्रिवेंशन ऑफ डायरिया, फिर ये इतने बड़े बड़ी ये बातें जो है ना, दीज आर नॉट फीसिबल।
ठीक है, so you need to discuss this with me, as a remedial, as an extra work in your internship. Okay. Sorry. इंक्रीज इंसिडेंस, फिर से इंसिडेंस, अब तक तो आपको समझ आ गई होगी कि इंसिडेंस नहीं बोलना है इंदर से, ठीक है, वरना फिर मैं पकड़ लूंगी। गॉल स्टोन्स इन वेरियस एज ग्रुप्स इन इतना इतना। सिर्फ द ओनली प्रॉब्लम इज, एक तो ये रिसर्च क्वेश्चन नहीं है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ gallstones in female presenting to whichever hospital from 2000 to 2024, जितना भी मतलब, और एक साल का डाटा देख लें। व्हाट इज दी, आप ये कहेंगे डिफरेंशियल फ्रीक्वेंसी। आप फ्रीक्वेंसी कंपेयर कर रहे हैं कि ये ज्यादा हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है जी, so this is your research question. Evaluate the clinical presentation during the study. Conduct a comprehensive survey of medical records from some other hospitals to know about gallstones. While these objectives are good, they are good objectives, but these are not smart objectives. You are describing a methodology. You're describing your entire study methodology actually. आपने स्मार्ट ऑब्जेक्टिव क्या बनाना है? डिफरेंशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ गॉलस्टोन्स, बस ये है ना। देखो एकदम से छोटा सा हो गया, ये आपने ऐसे करना है। टू कंपेयर दी डिफरेंशियल फ्रीक्वेंसी प्रेजेंटिंग टू इतना इतना फ्रॉम इतना इतना, ये आपका एक ऑब्जेक्टिव है, एंड इट इज स्मार्ट। ठीक है जी। What are the effects of fast food consumption on pregnancy outcomes, including gestational diabetes? A cohort study. This is very good. Only problem is कौन सा fast food? आप किस fast food की बात कर रहे हैं? ठीक है। फिर प्रेगनेंसी आउटकम्स, लेकिन उसने लिख दिया है जेस्टेशनल डायबिटीज और प्रीटर्म बर्थ लिख दिया है, और कोहॉर्ट स्टडी भी वेरी गुड, इसने सारा कुछ लिख दिया है इसके अंदर। और ये कोहॉर्ट स्टडी जो है यहाँ पे, वो उसका टाइटल है असल में। आई थिंक आई कॉपीड इट फ्रॉम देयर, लेकिन ये दिस इज द रिसर्च क्वेश्चन। कंपेयर द इफेक्ट्स ऑफ बैलेंस डाइट एंड फास्ट फूड ऑन प्रेगनेंसी इंक्लूडिंग इतना इतना इतना। Assess the presence of any adverse effects of fast food on pregnancy. Presence of any adverse effects, yes. So assess for or compare for, दोनों दोनों comparisons हैं, दोनों comparisons हैं, ठीक है। Compare the study groups for presence of, these ने font बदल दिया। Okay. Effects of fast food, prospective cohort, सारी बातें बिल्कुल ठीक लिखी हुई हैं, very good. And it is a good publishable study. I think that is the end of our session today. If there are any questions, I have 5 minutes. I'm right here, not going anywhere. Send me questions. 5 minutes हैं. Okay, I'm just going to quickly show you the paper again. देखो ये रहा, गौर से देखो ये रहा, ये AI वाला है। Is it difficult to conduct a prospective cohort? No, it's not. If you are in a setup जहाँ पे मरीजों के contact numbers आप ले सकते हो, आप उनसे एक अच्छी consent लेते हो, and your institution is research friendly, then a prospective cohort is the best design. Okay? It's the best design. अच्छा जी. I thought it was a better topic than the original one I sent. Okay? All right.
या तो लेट मी जस्ट, फिर ये प्री और पोस्ट मेनोपॉजल, ये वाला जो है थ्रू एंड थ्रू पास हुआ है माशाल्लाह, सारी चीजें इसमें बिल्कुल ठीक लिखी हुई हैं. What are the factors that contribute to goal setting behavior topper student? Key factors contributing topper, comparative and mixed method. हाँ, mixed method वालों ने अभी मुझे नहीं बताया कि वो mixed method कैसे करेंगे, उनकी कौन हेल्प करेगा. मैंने तो नहीं करनी क्वालिटेटिव में हेल्प. What can be done to reduce the incidence of drastic climate change? ये भी मैंने आपके लिए कर दिया. नॉलेज एटीट्यूड स्टडी बना दिया आपके लिए, ठीक है. मोस्ट ऑफ द टाइम इन एसी भी मैंने आपके लिए कर दिया. ठीक है, उसको भी मैंने आपके लिए स्पेसिफिक भी बना दिया, ये भी सारा कुछ ठीक कर दिया, केस कंट्रोल बना दिया इसको. Interventions preventing cardiovascular disease risk in polycystic ovarian syndrome was a systematic review, और उसके मुताबिक मैंने आपका ऑब्जेक्टिव चेंज कर दिया. एसोसिएशन एकेडमिक स्ट्रेस एंड स्लीपिंग डिफिकल्टीज, वो भी मैंने आपके लिए स्पेसिफिक करके लिख दिया. स्मार्ट ऑब्जेक्टिव बना दिया, ईयर भी बता दिए आपको. फिर स्टडी डिजाइन भी बता दिया, ये वाला स्टडी डिजाइन है. व्हाई इज देयर एन इंक्रीज इन सीएडी, वो भी मैंने आपके लिए सारे का सारा ऑब्जेक्टिव रिवाइज कर दिया, उसको भी स्मार्ट बना दिया मैंने आपके लिए. Ma'am, I sent another topic to you yesterday. Possible for you to review here in the session? Not in the session, Baba. Yes, I saw that robotic assisted surgery, a CAP survey. I will review it. I will send the feedback in the group. It's a good topic, but I cannot do it just yet. आपका सेशन का टाइम खत्म हो गया और मेरे मुल्क में मगरिब का टाइम हो गया है. But we will review it. That's okay. Maybe कल रिव्यू कर लेंगे. आप लोग वापस कल आ रहे हो, याद रखो. अच्छा, वेंसडे को नहीं है, कल है सेशन. हाउ आस्किंग अबाउट सेंसिटिव टॉपिक्स, वो तो मैंने पूरे का पूरा ही आपको कर दिया यार. यू शुड बी वेरी थैंकफुल टू मी. सारी चीज आपको मैंने लिख के दे दी. वैसे यू हैड डन अ गुड जॉब. इट्स अ गुड ओरिजिनल टॉपिक. कॉजेज ऑफ डायरिया आपने मुझसे खुद ही कम्युनिकेट करना है, ठीक है. ये आपने मुझे डायरेक्ट मैसेज करना है. एंड वी नीड टू गो ओवर योर टॉपिक एंड मेक इट मोर स्पेसिफिक. गॉल स्टोन्स वालों के लिए भी मैंने चेंज कर दिया उसको, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव बना दिया और टाइम बाउंड भी कर दिया उसको. फास्ट फूड कंजम्पशन, ये रोबोटिक सर्जरी वाले हैं, ठीक है. सो वी कैन डिस्कस दैट, वी कैन गो ओवर. दिस इज नॉट अ बैड टॉपिक, इट्स डिफिकल्ट टू डू बट नॉट अ बैड टॉपिक एट ऑल. ठीक है जी. I think our session for today is over. I hope to see you all tomorrow, inshallah, at the same time. यानी Pakistani 7 p.m. पे I will meet, inshallah. ठीक है जी. All the best. Allah Hafiz. See you tomorrow.